हरे कृष्ण। अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 6। न तद्भासते सूर्यो तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तद्धामं परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धामं परमं मम। न तद्भाष्यते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तद्धामं परमं मम। न न not not tat तत् that भासयते भासयते illuminates illuminates सूर्य सूर्य the sun the sun न न nor nor शशांक शशांक the moon the moon न nor nor पावकः पावकः fire fire electricity electricity यत यत् where here गत्वा गत्वा going going न न never never निवर्तन्ते निवर्तन्ते they come back they come back तत् धाम तद्धाम that abode that abode परमम परमं supreme supreme मम मम my my. translation and purport by Sri Rupa Jagadish Rupad ki Jai. that supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Please repeat after me. That supreme abode of mind That supreme abode of mind is not illuminated is not illuminated by the sun by the sun or moon or moon, nor by fire nor by fire or electricity. or electricity. Those who reach it Those who reach it never return to never return to this material world. this material world. Purport. The spiritual world, the abode of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, which is known as Krishna Loka, Golok Vrindavan, is described here. In the spiritual sky, there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity because all the planets are self-illuminous. We have only one planet in this universe, the sun, which is self-luminous, but all the planets in the spiritual sky are self-luminous. The shining effulgence of all those planets, called Vaikuntha, constitutes the shining sky known as Brahmajyoti. Actually, the effulgence is emanating from the planet of Krishna, Golok Vrindavan. Part of that shining effulgence is covered by the Mat Tattva, the material world. Other than this, the major portion of that shining sky is full of spiritual planets, which are called Vaikunthas, chief of which is Golok Vrindavan. As long as living entity is in this dark material world, he is in conditional life. But as soon as he reaches the spiritual sky, by cutting through the false, perverted tree of this material world, he becomes liberated. Then there is no chance of his coming back to here in his conditioned life. The living entity considers himself to be the lord of the material world, but in his liberated state, he enters into the spiritual kingdom and becomes an associate of the Supreme Lord. There he enjoys eternal bliss, eternal life, and full knowledge. One should be captivated by this information. He should desire to transfer himself to that eternal world and extricate himself from this false reflection of reality. For one who is too much attached to this material world
it is very difficult to cut that attachment. But if he takes to Krishna consciousness, there is a chance of gradually becoming detached. One has to associate himself with the devotees, those who are in Krishna consciousness. One should search out a society dedicated to Krishna consciousness and learn how to discharge devotional service. In this way, he can cut off his attachment to the material world. One can't become detached from the attraction of the material world simply by dressing himself in saffron. He must become detached to the devotional service of the Lord. Attached, sorry. Therefore, one should take it very seriously that devotional service, as described in the 12th chapter, is the only way to get out of this false representation of the real tree. In chapter 14, the contamination of all kinds of processes by material nature is described. Only devotional service is described as a purely transcendental. The word paramam mam are very important here. Actually, every nook and corner is the property of the Supreme Lord. But the spiritual world is paramam, full of 6 opulences. The Kathopanishad also confirms that in the spiritual world there is no need of sunshine, moonshine or stars. Na tat suro bhati na chandra tarakam. For the whole spiritual sky is illuminated by the internal potency of the Supreme Lord. That supreme abode can be achieved only by surrender and by no one other means. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री शरणानंद नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तदंशन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने वर्षिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेवा को करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे तो चर्चा मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग है। आई हैव फ्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन माय माइंड, आई विल आस्क द क्वेश्चंस। नंबर 1, ये जो ट्रांसलेशन परपोर्ट ये जो हमने पढ़ा 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, हम सबको याद है ये श्लोक। इस श्लोक में भगवान ने क्या बता रहे हैं? भगवान इसके बारे में बताते हैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब तो भगवान बता रहे हैं अपना धाम के बारे में बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हमेशा, क्योंकि प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य जो हैं वो प्रचार वाले तात्पर्य, तो अब इसको तात्पर्य आपने सुना है तो आप बताओ, हो सकता है सबके अपने अपने रिफ्लेक्शन होंगे इस तात्पर्य को सुनने के बाद, इसका क्या रिफ्लेक्शन है इस तात्पर्य को सुनने के बाद, वो थोड़ा सा कुछ 1-2 लाइन में बताओ, कोई 2-3 मिनट बता सकते। जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, उसमें उन्होंने कहाँ लिखा है कि प्रचार करना है? ऐसे ना, प्रसाद के बाद क्लासेस होनी नहीं चाहिए बट आज का द्वादशी का दिन था तो मेरे को लगा कि भैया मैं कृपा लेने के लिए आया हूँ और भक्त लोग भूखे रहेंगे और क्लास दूंगा तो शाप में मिल जाएगी। तो
बताओ क्या इसमें ऐसा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य में ऐसा कहाँ भाव है कि जहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हो प्रचार, या किस चीज का प्रचार? हम प्रचार की बात करते हैं तो इस तात्पर्य में ऐसा कहाँ लिखा है? तो भक्ति का प्रचार करना है पूरी। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मतलब पहली चीज़ की डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ भक्ति से ग्रेजुअली आ सकता है। तो इसलिए आप 12th चैप्टर में जो भक्ति दी हुई है तो उसको प्रैक्टिस करके हो सकता है detach। गुड गुड गुड। और बोलो। चार में गुरु जी एक पैराग्राफ है जो बोला है भगवद जी ने, one has to associate himself with devotees who are in Krishna consciousness. One should search Very good. out a society dedicated to Krishna consciousness and learn how to discharge devotional service. Exactly, this is the point. How to discharge devotional activities. तो अभी हम जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बताओ ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमको नहीं पता चली? जब हम इस्कॉन के संपर्क में आए थे तो हमको कौन सी ऐसी बात थी जो नया पता चला हमको? मतलब बहुत सारी बातें रही होगी, बट विशेष रूप से एक बहुत नई बात है जो हमको इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद, भक्तों के थोड़ा संग के बाद फिर हमको समझ में आता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। अच्छा, ऐसी चीज़ क्या बताओ? तो हम सोल है, आध्यात्मिक जगत। हाँ, आध्यात्मिक जगत। आत्मा के बारे में कई लोग बोलते हैं, मायावादी भी आत्मा के बारे में बोलते हैं, पर आध्यात्मिक जगत जो है ना, उसका जो प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने किया है और जो उनकी पुस्तकों के माध्यम से है, वो आध्यात्मिक जगत के बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कोई नहीं बताता, कोई इसके बारे में नहीं बताता। हमारे यहाँ पे ब्रह्म संहिता है, गीता में श्लोक है। अब जहाँ जहाँ पे भी आध्यात्मिक जगत का भगवान ने कोई भी हिंट किया है तो वो श्रील प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य बड़े विस्तृत हैं, बड़े हैं, बड़े दिल खोल के प्रभुपाद जी लिखे हैं वहाँ पे। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में है ना, हम सब ने सुना होगा ना, आज चल के तुझे मैं लेके चलूँगा कैसे गगन की तले, जा गम भी न हो आंसू भी न हो प्यार ही प्यार मिल। तो ये जो गाना है मतलब डिवाइस पे हम गाते भी हैं, है ना। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं तो हम सोचते भी हैं, कंtemplate भी करते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इस्कॉन आफ्टर कमिंग इनटू इस्कॉन? हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में पता चलता। आज खुदा न खास्ता हम, हमारी पूरी फिलोसॉफी शुरू कहाँ से होती है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, एंड फ्रॉम वेयर वी केम? स्पिरिचुअल। वेयर वी शुड गो? ठीक है। तो दो जगह ये जो 3 फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसके आंसर कई बड़े बड़े पोस्ट डॉक भी नहीं दे पाते, वो हमारे आप सब साधु इतने आसानी से देते थे कि हम कहाँ से आए हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के धाम से आए हैं और हमको जाना कहाँ है? भगवान के धाम। तो ये जो 3 बड़े क्रूशियल क्वेश्चन है उसमें जो 2 है उसका उत्तर क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम अभी जब इस आंदोलन में जुड़े हैं तो हमें पता है क्या करना है, हमें पूरी दुनिया को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताना है, क्योंकि ये हमारा इंटेंशन है। हम भक्ति कर रहे हैं बट हम भी क्या चाहते हैं? भगवान के धाम में जाना, शाश्वत शांति में गच्छति, शाश्वत शांति चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं। तो हम सब क्या चाहते हैं उसके लिए? भगवान का धाम। तो अभी दिसंबर का पावन महीना है, गीता जयंती अभी हमने सेलिब्रेट की 2 दिन पहले। तो हमारा जो श्री प्रभुपाद जी ने जो बुक मैराथन दिया है ना, जैसे पहले वो क्रिश्चियन कंट्रीज में उधर पाश्चात्य देशों में नॉर्मली ये विंटर हॉलीडेज रहते हैं, क्रिसमस के हॉलीडेज, उसमें भक्तों ने खूब प्रचार किया था। तो उससे ये दिसंबर का महीना पॉपुलर हो गया, दिसंबर मैराथन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। और कोइंसिडेंटली मतलब हम देखें तो नवंबर दिसंबर के महीने में नॉर्मली गीता जयंती रहती है। तो भगवान का आयोजन है कि इस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना हो और इस प्रकार से नवंबर दिसंबर के महीनों में इस प्रकार से प्रचार करें भक्त पूरी दुनिया में। एक प्रभुपाद जी के शिष्य के बुखारविंद से हम कथा श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया पर अंग्रेजों ने क्यों राज किया? सब सोच रहे अंग्रेजों ने क्यों राज किया, मतलब उसका उत्तर क्या है?
बोला वो तो उनकी इच्छाएं थी, वो राज करना चाहते थे, फैलना चाहते थे, प्रचार अपना उन्होंने अपनी जो गरिमा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया, है ना। इस प्रकार से उत्तर भगवान का आयोजन था। बोले कि आप देखो, जब अंग्रेजों ने भारत में राज किया, अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत में किया, प्रैक्टिकली एक ऐसा आप पढ़ते हैं ना, भूटान को छोड़ के पूरी दुनिया में हर देश में मतलब राज हुआ है ना। तो बेसिकली भूटान कभी भी गुलाम नहीं रहा, है ना, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। कौन क्या जाएगा, क्या लेगा, पहाड़ है, मतलब जो जाएगा उसको इतनी मेहनत करना पड़ेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। बचपन में पढ़ता, आई डोंट नो अभी उसका क्या स्टेटस है। बचपन में वो जीके की छोटी छोटी वो 5-10 रुपये किताबें आती थी, उसमें लिखते थे वो लोग कि भूटान इज द ओनली वन कंट्री वेयर देयर इज नो टॉकीज। मतलब लाइक पीपल डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू फीड देमसेल्व्स, व्हाट टू स्पीक ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो पढ़ा था, आई डोंट नो अभी बना है नहीं बना, आई डोंट नो। तो अब उस देश को छोड़ के अंग्रेजों ने लगभग सबके ऊपर, और कुछ और का देश छोड़े होंगे, और जो उन्होंने छोड़ दिया वहाँ दूसरों ने राज किया है। ठीक है, रशियंस ने कुछ किया होगा, अमेरिकन इन्होंने कुछ किया होगा, मुगलों का कुछ रहा होगा, इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश पे अंग्रेजों के राज हुआ, और प्रैक्टिकली अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगी। आज पूरी दुनिया को अगर लैंग्वेज के टर्म में यूनाइट करते हैं तो कौन सी भाषा है? इंग्लिश। बोला जब प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व आ गया, ऐसे समय में पूर्णोत्तम भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से चैतन्य महाप्रभु के महान सेनापति आए, श्रील प्रभुपाद इस धराधाम पे अवतरित हुए 1896 जन्माष्टमी के दूसरे दिन। और वो इस प्रकार के परिवार में जन्मे जहाँ उनके लिए हायर एजुकेशन लेना बहुत सामान्य बात रही, और वो कुशाग्र बुद्धि के धनी, और उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई की, और विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में उनकी रुचि भी रही। और अब जब ये प्रचार का समय आया कि पूरी दुनिया को कृष्ण प्रेम से आप्लावित करना है, पूरी दुनिया को कृष्ण प्रेम के सागर में डुबोना है, तो भगवान का ये आयोजन था कि पूरी दुनिया को सबसे पहले अंग्रेजों का गुलाम बनाया जाए, ताकि पूरी दुनिया में एक भाषा हो, पूरी दुनिया में एक भाषा हो, और वो एक भाषा मेरा सेनापति भक्त यूज करेगा, और वो उस एक भाषा के माध्यम से पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार करेगा। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मंदिर में, एक उज्जैन में, कभी भी आपको मौका मिले ना, तो महाकाल कॉरिडोर बना है। महाकाल कॉरिडोर के पास में वो म्यूजियम की कई आर्ट गैलरी है, तो वो बहुत अच्छा है। वहाँ के जो इंचार्ज है माता जी, वो कहीं से तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से कहीं से PhD है। हम मिले थे उनसे, ऐसे कभी मिलना हुआ था, तो शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद शिल प्रभुपाद। वो आई थी, मंदिर में आई, उन्होंने भी मतलब मैं विजिट करवाया उनको, टेम्पल, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिखाए ना, नंबर ऑफ, बहुत अच्छी माता जी हूँ मैं, मतलब मिला था। तो उन्होंने, जब हम उनसे पहली बार मिले थे ना, तो उन्होंने, वो वृंदावन गई थी, वृंदावन का भी उन्होंने अपना मंदिर देखा है, कीर्तन अटेंड किया है, बुक्स भी ली है। तो उन्होंने कहा कि मैं शिल प्रभुपाद जी के एक एस्पेक्ट से बहुत इम्प्रेस हूँ। बोला पूरी दुनिया को शिल प्रभुपाद जी ने एक कर दिया है। सही बात है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया ब्रदरहुड की बात करती है बिना बाप के। मैंने कहा शिल प्रभुपाद ने बताया कि ये तुम्हारा परमपिता तो यही है, इसीलिए तो हम ब्रदरहुड की बात कर पा रहे। तो उसने कहा ये तो कंसेप्ट है ही आपका। बोले एक और चीज़ है। मैंने कहा क्या? बोला अब जब कभी भविष्य में भूकंप आएगा, है ना, जैसे अभी हम देखते हैं ना मॉन्यूमेंट्स निकलते हैं जमीन के अंदर से, वैसा ऐसा कुछ होगा, समय आएगा, प्रलय आएगा, सब हम दब जाएंगे, पूरी पृथ्वी दब जाएगी, और फिर कई जन्मों के बाद, कई सालों के बाद, कई हजारों सालों के बाद लोग आएंगे, लोग जमीनों को खोदेंगे, मॉन्यूमेंट्स ढूंढेंगे, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पूरी दुनिया का एक ही परमपिता थे। बोला शिल प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को राधा कृष्ण के माध्यम से जोड़ दिया। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये जो लोग थे, जो भी है, आई डोंट नो उनकी क्या फिलोसफी रहती है। बोले कि जब इस प्रकार का समय आएगा और उस प्रकार के लोग भविष्य में जब खुदाई करेंगे ना, तो उनको सबको पता चलेगा कि इस पूरी, ये जो लोग थे, ये पूरा संसार जो था, इस पूरे संसार में ये जो राधा और कृष्ण थे ना, ये इनकी पूजा होती थी। पूरी जगह उन लोगों को ऐसा पता चलेगा।
अब वो चूंकि उस बैकग्राउंड की है तो लाइक शी वाज थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। तो मैं खुद था, मैंने कहा माय गॉड ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब बाहर के लोग इस प्रकार से शिल्पोपा जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इतना अप्रिशिएट करते हैं। और अभी फिर ये बात आती है कि जब इस प्रकार से शिल्पोपा जी, गुरु महाराज बताया करते थे कि शिल्पोपा जी जब भी ऐसा अपना तात्पर्य लिखते थे और डिक्टाफोन में करते थे, तो कभी भी जब भी हरे कृष्णा महामंत्र इज द ओनली मीन्स, तो कभी हरे कृष्णा महामंत्र नहीं लिखते थे। नॉर्मली क्या लिखते थे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी उसको पूरा लिखते थे। तो एडिटर ने कहा बार बार पूरा पूरा लिखते हो, मतलब यार हमको भी टाइप करना पड़ता है। तो बोला, तो प्रभुपाद ने कहा कि हो सकता है समय आएगा पूरे संसार में ऐसी सरकारें आ सकती है, ऐसे लोग आ सकते हैं जो कम्प्लीटली कृष्ण भक्ति के लिए एनवियस हो सकता है इस्कॉन में कभी बिखराव हो जाए, हो सकता है भक्तों में कुछ बिखराव हो जाए, हो सकता है कल को मूवमेंट बंद होने की कगार पे हो, कुछ भी हो सकता है। पर अगर इन किताब में छपा हुआ कोई एक भी पेज, और भी फटा पुराना पेज अगर किसी को कहीं मिल जाए और उस पेज पे अगर हरे कृष्णा महामंत्र लिखा रहेगा, पूरे संसार को फिर से बचाया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी का जवाब था। इसलिए मतलब मेरा प्रयास रहता है कि जब भी लिखे, यू डोंट एडिट, यू टाइप पूरा महामंत्र टाइप करो। ये प्रभुपाद जी का भाव था कि पूरे संसार की उस वक्त हरे कृष्णा महामंत्र अगर कहीं कागज पे लिखा दिख गया, उससे रक्षा चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव। ये जब आप अभी मंदिर में था, अकाउंट ऑफिस आपने देखा है, अकाउंट ऑफिस के बाहर वो रेड कलर के सोफा रखा हुआ है, वहीं बैठा था। तो एक माता जी आई, वो होगी 50-55 के ऊपर की होंगी। बोला मैं इस्कॉन से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, आइए माता जी बैठिए। साथ बैठा, बात करती है ना विजिटर्स से, बैठी माता जी। बोला क्या तरीका है? तो अब मैं सिर्फ बेसिक चर्चा की। मैंने पूछा कहाँ से है माता जी? मतलब मैं बेसिकली हम इंदौर से ही हैं, बाकी अभी हमने छोड़ दिया। अभी मेरा एक बेटा सिएटल में है और एक लंदन में है। तो मैं अभी सिएटल में रहती हूँ, छोटा बेटा सिएटल में, तो मैं उसके साथ रहती हूँ। तो मैंने कहा अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? बोला हाँ बस यही महाकाल दर्शन कर रहा था, तो अभी सिएटल से आ रही हूँ मैं यहाँ था, कुछ प्रोजेक्ट था मेरा, तो उसके लिए हम सिएटल से आ रहे। अच्छा, फिर बातचीत में उसने बताया, पूछा मुझसे कि आप कभी गए हैं क्या वेस्ट में? नहीं, जाना भी नहीं। अपने जो वक्त गए हैं उनके अनुभव सुन के लगता है कि हम शांति से यहाँ बैठ के भजन करें ज़्यादा अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ सेवा हो भी जाती है, वहाँ क्या पता क्या होगा। तो माता जी बोली कि आप, आई डोंट नो आप कितना इस्कॉन को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। अब मैं मन में सोच रहा हूँ, मैंने कहा भैया बोला नहीं मैं बस क्या बोलूँ। तो फिर वो बोलती हैं कि एक्चुअली मेरा घर जो है वो सिएटल इस्कॉन से जस्ट 1.5 आवर के ड्राइव पे है। जस्ट 1.5 आवर। शी वाज लाइक जस्ट 1.5 आवर। हमारे भक्तों को इंदौर से उज्जैन लाने में हमको किसी में आ जाते हैं, यही 1.5 आवर है। तो मैं वो अच्छा ग्रेट पास नहीं। तो बोले कि मैं वीकेंड्स पे वहीं जाते हैं, हम लोग परिवार के साथ जाते हैं। मेरा पोता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है और सबको बड़ा अच्छा लगता है मंदिर में जाना। और बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर विदेशों में जाओगे ना, तो लोग बड़ा आपको हे दृष्टि से भी देखते हैं कई बार। तो ये इस्कॉन के कारण जो सनातनियों की, जो हिंदुओं की जो यूनिटी बाहर है, उसका फंडामेंटल रीज़न जो है इस्कॉन का मंदिर है। मतलब हम इस्कॉन के मंदिरों में हम जाते हैं, कई लोगों को मिलते हैं, और कई बार हमको फैमिलीज हमारी कलेक्शन में जो भी आते हैं, मतलब ये बड़ा सिंपल सा मटेरियल सा बेनिफिट है। ये टेंपल जाने के जो फायदे हमने पढ़े हैं सुने हैं वो उसमें नहीं आते, बट स्टिल शी वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट। हम वहाँ जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि इतने सारे इंडियंस रह रहे हैं, इतने सारे हिंदूज़ हैं, है ना। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है।
तो बोला अभी पूरे मतलब वेस्ट में हिंदुओं का जो शेल्टर है वो आपके मंदिर है, राधा कृष्ण के जो आपके मंदिर हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद अगेन वो जो फंडामेंटल रीजन जिसके कारण हम सब इस्कॉन में हैं, प्रसाद। तो बोला मंदिर में प्रसाद होता है, बोला मैं हमारे कभी फास्टिंग वगैरह कुछ रहता है और इस प्रकार से रहता है तो आपके मंदिर में वो खिचड़ी बन जाती है और वो काफ़ी सारी अलग अलग स्वीट में भी बहुत सारी वैरायटी बन जाती है। हम तो घर पे भी इतना नहीं बना पाते, फास्टिंग वाले दिन के भी बहुत सारे आइटम रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो माय गॉड, मतलब आई वॉज अप्रिशिएटिंग माई फॉर्च्यून कि देखो भगवान की कृपा से ये लोग खुद आके मेरे से बात कर रहे हैं। आई डिड नॉट पोस्ट एनीवेयर ना, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ अपने, वो आके बता रही हैं और वो शी वाज एक्सप्रेसिंग हर एप्रिसिएशन फॉर शिल गोपाल। तो हम सोच रहे हैं इस प्रकार की जो चीज़ें हम देखते हैं सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि माय गॉड हम जहाँ हैं वो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमको कई बार पता नहीं चलता ना कि हम कौन है एक्चुअली। अभी जैसे भक्ति प्रेम महाराज हमेशा के एग्जाम्पल देते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हो और आपको पता नहीं हो कि आपके साइड में नरेंद्र मोदी बैठे हैं और आप उसको नहीं जानते हो और वेटर आया पानी लेके तो आप अपना गिलास उठा के पी जाओगे तो यू विल नॉट लुक इवन कौन है क्या है, आपको क्या मतलब साइड में कौन बैठा है। बट एज एंड वेल यू विल कम टू नो ना कि हमारे सामने देश का प्रधानमंत्री बैठा है साइड में, आप क्या करोगे? माय गॉड सर आप क्या करोगे? सेवा करोगे। सिमिलर सी बात है कि हम अभी जान ही नहीं पा रहे कि हु वी आर, व्हाट इस्कॉन इज डूइंग। We are still not aware about the glories of Shri Prabhupada. We are not still aware, we are not ourselves convinced of all these things. इतनी सारी चीज़ों को लेके हम खुद को ही कन्विंस नहीं है। अभी एक गौशाला का प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ सेवा करने का मौका मिला तो उस वक्त कहीं कलेक्शन के थ्रू एक हिंदूवादी नेता है जो कि गौ माता के प्रोजेक्ट्स पे गौशाला पे उनको काफ़ी ज्ञान है और वो गौशाला खोलने वगैरह में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनसे संपर्क हुआ तो उनकी बेटी उधर है ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में थे अभी, बीच में लॉकडाउन लग गया तो इंडिया आ नहीं पाए, तो लॉकडाउन के टाइम की बातें हैं तो मेरी फ़ोन पे बात होती थी। तो उनका शिल गोपाल जी को लेके अप्रिसिएशन क्या था कि ये ऑस्ट्रेलिया में वो बोल रहे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बोले ऑस्ट्रेलियंस को देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ। बोला यहाँ क्या होता है कि स्पेशल ट्रेन होती है, गायों को भरा जाता है और वो ट्रेन क्या पूरी खुल जाती है, मतलब सारे डब्बे जो है वो एकदम बटन दबाओ सारे डब्बे खुल जाते हैं। मतलब वो जाते हैं पूरी उसमें गाय को जैसे जैसे भर दिया जाता है और सारे को, और उसमें सिस्टमेटिकली कुछ बांधने का है तो वो पहले बहुत कम कंजेस्टेड डिस्टेंस में उसको बांध दिया जाता है और पैर बांध दिए जाते हैं, गला बांध दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है। और वहाँ से फिर वो सीधे सीधे कसाई खाने में स्लॉटर हाउस में जाता है, वो ट्रेन सीधे वहीं जाती है और वो कसाई खाने में बड़ी वो हाईली इक्विप्ड टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, वो ट्रेन खुलती है ना, तो अभी बस वो ट्रेन से और वो कट 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 उनको गौ माता को काटते हैं वो, और वो मतलब मशीनें इतनी एडवांस्ड है, सो कॉल्ड एडवांस व्हाट टू से, कि गाय का ब्लड अलग है ना, स्किन अलग है ना, सर का पोर्शन अलग, और इस प्रकार से वो पूरा बाइफरकेटेड एफर्ट्स है और वो मशीन इस प्रकार से कर देती है। और बस वो एक डब्बा गया, वो सारी कट गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा वो हजारों एनिमल्स को कुछ घंटों में काट देते, इतनी वो इक्विप्ड वो है। मतलब आपके प्रभुपाद जी ने क्या किया है, आपके प्रभुपाद जी ने ऐसे ऑस्ट्रेलियंस, मैं सिडनी में और वहाँ पे अलग अलग मंदिर में गया हूँ, वहाँ पे 200 150 गाय हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन जो इस चेतना के लोग हैं वो आज गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हरि बोल। ये आपके प्रभुपाद जी ने किया, ही वॉज अप्रिशिएटिंग इन दिस वे। मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ इस प्रकार के लोग हैं, मेरा 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 अपना खून खोलता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँगा। पीपल आर ईटिंग बीफ लाइक दिस, इतना सो कॉल्ड प्रोडक्शन है, इतना सब कुछ है। तो आपके प्रभुपाद जी ने इन विदेशियों को बताया कि गाय हमारी माता है। बिगेस्ट। तो मैं जब सुन रहा था, मतलब गूज बम जैसा अभी आपको भी फील हो रहा है ना, तो समथिंग और माय गॉड। तो आप समझो कि इतना सब कुछ प्रभुपाद जी अपने 10 साल के प्रोजेक्ट में उन्होंने प्रैक्टिकली 10 साल में उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर दिया कि आज पूरी दुनिया की उम्मीद अगर है तो वो हमसे है, पूरी दुनिया की।
होप अगेंस्ट होप शब्द इस्कॉन का ही है, प्रभुपाद जी किताबों में लिखते हैं, होप अगेंस्ट होप, अ डिवोटी हैज होप अगेंस्ट, जहाँ कोई आशा की किरण न हो बट स्टिल एक किरण की आशा भक्त के हृदय में रहती है। अब इतना इम्पोर्टेंट मिशन में हम है, और अब हमारे ऊपर है जिम्मेदारी। जब आपको इतनी बातें पता हु यू आर, लाइक टू हुम यू आर एसोसिएटेड, आप मतलब मोदी का आदमी है ना, ये मोदी का आदमी, जैसे अभी अंबानी अडानी के लोग बोलते हैं ना, अरे यार तो मोदी के लोग हैं ये, तो अभी आज उनका कोई कुछ कर पा रहा है मतलब इन टर्म ऑफ फिगर हम बात करें तो अभी ये जैसे वो विजय माल्या सब कुछ 5,000 करोड़ रुपए बस SBI का छोड़ के भाग गया, ठीक है, तो 5,000 करोड़ नॉट अ वेरी गुड डील, इतना लोन कोई बड़ी बात नहीं है। अंबानी ग्रुप के ऊपर नहीं करके 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन है, अडानी के ऊपर लगभग इसका डबल लोन होगा। कभी अखबारों में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। क्यों? जब अपना हो थानेदार तो डर जाएगा तो सब चल रहा है ना। तो आप ये बताओ कि वो अपना आदमी होने का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, और वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब फिर मोदी जैसा चाहता है कि लोग वैसा भी तो करते हैं, है ना। जब मतलब सरकार चाहती है कि हमको ऐसा कुछ करवाना है तो करते हैं, है ना। तो बड़ा छोटा सा इंसिडेंस कि वो रवीश कुमार जर्नलिस्ट, उसका चैनल ही खरीद लिया अडानी ने, बोले जा कर ले नौकरी, बोल ले तू, हो गया खत्म काम। चलो डजन, छोटी सी बात बताओ कि अपने आदमी होने से क्या होता है। आप देखो कि हम उस सोसाइटी के टू हु वी आर प्रभुपाद मैन, हम प्रभुपाद जी के पोते हैं हम। अब देखिए हमारी क्या स्थिति है कि हमारे ऊपर ये आचार्य परंपरा है जिन्होंने ऐसा किया। बाहर वाले लोग, वो जो सिडनी से जिससे मेरी बातचीत होती है ना, इज अ सिंपल साउथ इंडियन फेलो, ही इज नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा, ही इज नॉट चैंटिंग, वो कोई ऐसा डिवोटी कम्युनिटी में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं, और ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई हमको कुछ करना है, बट ही इज सिंपली अप्रिशिएटिंग कि आपके कारण ये विदेशी लोग जो गाय खा रहे हैं, वहाँ पे जैसे 100-150 गाय हैं और वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वो अप्रिसिएशन उसके हार्ट में इतना है। आपको कुछ नहीं करना है, समय के साथ हमारा क्या पूरा जो आंदोलन है धक्का लगाने का आंदोलन है का धक्का। अभी जैसे हमने कुछ धक्का लगाया, उससे थोड़ी बहुत बात किया, उससे कुछ सुना, है ना, कल को वो वहाँ जाएगा मंदिर में, कल को कोई भक्त प्रसाद दे देगा, गीता वगैरह लेगा, कुछ करेगा, जीवन बदलेगा, आज नहीं तो कल वो भक्त बन जाएगा। तो हम क्या धक्का लगाने की सेवा है हमारी, है ना। इसलिए डिवोटी खुद क्रेडिट नहीं लेते कि मैंने भक्त बनाया था, धक्का लगाया बेटा किसी और ने कुछ किया था, अभी आपको धक्का लगा तो धक्का लग के आपके पास आ गया, तो मतलब वो है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ऊँट की कमर एक स्ट्रॉ ने तोड़ दी, कुछ है ना इंग्लिश स्ट्रॉ और बैक, जैसे याद नहीं आ रहा कि कैमल्स बैक इज ब्रेकन ब्रोक बाय स्ट्रॉ समथिंग ऐसा कुछ। तो ऊँट के ऊपर आपने बहुत सारा सामान लाद दिया, है ना, और आप जैसे आपने स्ट्रॉ रखी और कमर टूट गई, गिर गया वो। तो अभी आपको लग रहा है स्ट्रॉ से ऊँट की कमर टूटी, ऐसा नहीं है ना। It was the straw that broke the camel's back. Yeah, it was a straw that broke the camel's back. तो हमारी स्थिति वो स्ट्रॉ वाली है ना। वी शुड नॉट फील प्राउड कि अरे हमने कुछ कर दिया, क्या किया, ये जो किया है वो हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो प्रभुपाद जी और प्रीवियस आचार्यों ने जो हमको दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के विनम्र भाव से ये प्रयास करें कि प्रभुपाद जी हम क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस परपोर्ट में, आपको कुछ नहीं करना है, होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर डार्कनेस, और यहाँ लिख रहे हैं as long as a living entity is in this dark material world, he is in conditional life. But as soon as he reaches the spiritual sky by cutting through the false perverted tree of this material world, he becomes liberated. Simply we have to distribute this knowledge. But whole concept of our book distribution is what all about? We are here to share the spiritual world. हमको किताब क्यों बांटना है? ताकि हम दुनिया को बता पाएं कि ये स्पिरिचुअल वर्ड है। पीपल आर नॉट अवेयर। वो लोग इस संसार को वन एंड वन मान लेते हैं, सब वन एंड ऑल, एवरीथिंग इज हियर ओनली, इस एक लाइफ को ही सब कुछ मान लेते हैं, है ना। मतलब जो होगा यही है, जो कर कुछ है सब यही है। इतने अटैच हो जाते हैं, चाहे रिजल्ट्स के साथ, पावर प्रेस्टीज पोजीशंस के साथ, चीज़ें निगेटिव होती, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। लैक्स ऑफ पीपल आर कमिटिंग, 13 लाख लोग पर ईयर सुसाइड कर लेते हैं भारत में। ये 25 से ये 30, 18 से 30 की उम्र के लोगों की 13 लाख की पॉपुलेशन जो सुसाइड कर लेती। एंड हु वी आर, अरे हम इस लाइनेज वाले लोग हैं
भगवान चैतन्य महाप्रभु है, भगवान कृष्ण की कृपा है, और शिल प्रभुपाद जैसे महान आचार्य है, और जिन्होंने ये सारी किताबें लिखने के लिए जो संसार में आए थे। शिल प्रभुपाद जी का वो पास्ट टाइम सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक भक्त को शिल प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं आना चाह रहा था, संसार में नहीं आना चाहिए। शिल प्रभुपाद वाज एंग्री लिटिल, मतलब मैं नहीं आना चाह रहा था इस संसार में। मतलब कृष्णा वाज रिक्वेस्टिंग मी, instructing me to go and to write books. And I thought, Krishna, I will not go. Metal world is not good place for me. So Krishna told that I have arranged for everything. You don't need to worry. Simply you go and write books. That is why I came here. I was not desiring to come here. This was Srila Prabhupada. तब मेरी इच्छा नहीं थी आने की। मैं क्यों आया हूँ? किताबें लिखने के लिए। 10 साल में आप समझो, मतलब हमारी अगर कभी नींद नहीं होती है, हम सब तो संसार के बद्ध जी, मतलब मेरी स्थिति तो ऐसी है, मतलब मैं तो बड़ा हालत खराब रहती नींद को लेके। आप सब तो साधु हो, जैसे नींद नहीं आती, ये रात को थोड़ा लेट सोए, है ना, और सुबह अपन उठते हैं, सुबह उठने का टाइम लगभग क्या है, चलो 4 बजे उठना है, अपन प्रयास करते हैं 4 से पहले उठने। तो अभी रात को जिसको 11-12 बजे सुबह उठे, तो दिन में सोना हम अपना अधिकार समझते हैं कि प्रभु जी, और मान लो किसी और ने सेवा दी, और टेम्पल मैनेजमेंट की सेवा के कारण कभी ऐसा हो गया, या अथॉरिटी की सेवा से, प्रभु रात को आप 12 बजे वो गेस्ट को लेके आ सकते हो क्या? चले जाइए, आप सेवा कर लोगे, पर मन ही मन एक अधिकार का भाव आ जाएगा। आरती तो कल सेवा थी, कृष्ण ने बोला, देवलोक ने बोला था, इसलिए सेवा क्या था। फिर ये ले दे के मान लो थोड़ी देर के लिए आप उठ भी जाओगे, तो फिर स्टिल यू हैव दैट राइट। प्रसाद के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, है ना, तुम्हें बोनाफाइड। अभी आप देखो, इतनी नींद हम लोगों को प्यारी है ना, और मतलब कई बार जैसे, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मेरे को ना, जैसे सुबह उठा है, मैं बहुत इसको जज करता हूँ कि मैं रात को कितने बजे सोया हूँ, अभी इतने बजे उठा हूँ, तो घंटे 5, 4.5 घंटे की नींद हुई, चल ठीक है, देखते जब मौका मिलेगा तो सोचेंगे, ठीक है। फिर और अगर मान लो नींद नहीं होती है, तो कुछ चिड़चिड़ापन लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा लो लग रहा है, तो मेरे को समझ में सबसे पहला रीज़न क्या है? सोए नहीं थे, मतलब ये फर्स्ट रीज़न। कोई मेरे से कुछ पूछता भी है ना, अब कल एक वक्त बात कर रहा था, बोला प्रभु बहुत चिड़चिड़ा बना रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। व्हाट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन? रात को कितने बजे सोए? उसने बोला इतने बजे। मतलब सुबह कितने बजे उठे? 5 बजे। कितने घंटे सोए? 4 घंटे। तो रेस्ट कर क्या, और स्वाभाविक है ना, शरीर, हमारे शरीर नींद के साथ हमारी बहुत सारी, आपकी नींद प्रॉपर होती है ना, आपको पेट प्रॉपर साफ हो जाएगा। नींद प्रॉपर नहीं, आपको कुछ नहीं होना। अब ये देखो कि एक महाभागवत, ये भक्त हमारे प्रभुपाद जी, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज़ ये जो मेरा सोने की प्रवृत्ति है, इसको ख़त्म कर दो, इसको कम कर दो, ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, किताबें लिख पाऊँ। ये वो सारी ठंड की, गर्मी की रातें हैं जहाँ पे बिल्कुल हम, मतलब स्पेशली अभी तो ठंड का महीना, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है सुबह, मतलब है ना, मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा बोलता है, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं। वो बोला करता था कि मेरे को 50,000 थॉट तो सुबह सुबह आ जाते कि उठना है कि नहीं उठना है। तो अभी ऐसी स्थिति में ये सारी रातें प्रभुपाद जी जगे काहे के लिए? ताकि वो ये लिटरेचर दे पाए, ताकि इसको उनको एक फिलोसफी पता चले और पूरी दुनिया को स्पिरिचुअल वर्ड पता चले। हो सकता है कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर इतना स्ट्रेस किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और बुक रीडिंग के ऊपर। पहले रीडिंग फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्ट्रेस प्रभुपाद जी का क्यों था? कि वो जानते थे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में नो वन इज गोइंग टू टेल। कौन बता रहा है? अभी एक मिले भाई साहब, मैं इंदौर में एक शॉप पे गया था, कुछ तो मंदिर के लिए परचेसिंग करना था। तो बातचीत में उसने पूछा, तुमने ज्वाइन कर लिया? अरे बोला तुमने जीवन के रंग देखे ही नहीं। मैंने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपकी, वो भाई साहब 70-75 के थे, और वो बोल रहे थे कि आपने जीवन के रंग नहीं देखे और आपने क्या ये सब कुछ कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा अभी मैंने बताया उनको, मैंने कहा एक्चुअली जीवन के रंग क्या है? बोले जीवन रंगीन है, कभी खुशियां हैं, कभी गम है। अब सुनने में बड़ा लुक्रेटिव लगता है। दैट फेलो वाज वेरी गुड ओरेटर एक्चुअली, अच्छा बोलने वाला था।
है ना, वो हिंदी साहित्य वाले और अच्छे बिजनेस, बड़ा बिजनेस। तो मैंने सुना उनकी थोड़ी देर बात को सुना, बस मैंने फिर एक ही चीज़ कही, मैंने कहा सर अभी कोरोना की लहर में भगवान की कृपा से हम भी बचे, हम सब बच गए। मैंने कहा क्या कभी हमने हमारे जीवन में दुखों के लिए प्रार्थना की? क्या आपने कभी प्रेयर की थी क्या कोरोना हो जाए, शांति? मैंने कहा हम खुशियाँ चाहते हैं पर दुख आ जाते हैं, ये फिलोसफी है, दिस इज सिद्धांत। मैंने कहा आपने कभी दुखों के लिए प्रार्थना नहीं की, खुदा ने खास्ता मैंने कहा आपके धंधे को कुछ हो कल को कुछ होगा, आप चाह रहे हो क्या ऐसा कुछ? तो मैंने कहा जीवन की जो रंगीनियत है ना, ये रंगीनियत गम और खुशियों को लेके नहीं है, ये रंगीनियत तब है जब आप ठाकुर जी की सेवा करो और इस भाव के साथ करो कि जो कुछ आएगा हमको स्वीकार करना है, क्योंकि संसार दुखालय है। वही अपना प्रसिद्ध श्लोक है, मामुपैक्त्य पुनर्जन्मम दुःखालयं जन्म। सब जगह मैं यही बोलता हूँ, आप देख लो संसार दुखों का घर, आप सोचो कि आप यहाँ करोगे। लगा हमारी आध्यात्मिकता क्या करती है, हमारी आध्यात्मिकता हमारी स्थिति को ऊंचा करती है। लगा बरसात होती है, बरसात होती है तो कबूतर, चिड़िया, मैना, ये सारे पक्षी क्या करते हैं, आश्रय ढूंढते हैं, छत ढूंढते हैं, कोई शटर के वहाँ घोंसले बना देते हैं, कई घरों के अंदर बनाते हैं। मतलब बास क्या करता है, बादलों के ऊपर उड़ता है। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारे साथ हमारी परिस्थिति बदले न बदले, पर हमारी मनस्थिति हम बदलते हैं, और ये हमारी आध्यात्मिकता हमको शक्ति प्रदान करती है। ये कृष्ण भक्ति का मार्ग है जो हमारी स्थिति को ऊंचा रखता है। हमारे कई भक्तों को कोरोना हुआ, कुछ का हुआ जो हुआ, आप देख रहे हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख था वो भी, पर हमने हमारी स्थिति को उस ऊपर रखा कि जो भी होगा ठाकुर जी कृपा से हम सहने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे किस प्रकार से हम और इन सारी विपरीत परिस्थितियों में अपने कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। तो भक्तों का जीवन में ये प्रयास होता है। तो अभी ये हमारी फिलॉसफी, ये हमारा कंसेप्ट, और ये चीज़ है जिसकी लोगों को आवश्यकता है। अभी मैं इनके साथ शेयर कर रहा था, अभी जब बात कर रहे थे, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे था मैं संकीर्तन बस में। मेरा क्या टारगेट रहता था, मैं मतलब ऐसा डोर टू डोर, क्योंकि डोर टू डोर जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, किताबें बताना, इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ ह्यूमिलिटी एंड आई डोंट फील माई सेल्फ लाइक दैट। तो मैं क्या करता था, मैंने कहा सीधे मैं गया कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सबसे बड़े ऑफिसर के पास, तहसीलदार, छोटी जगह थी, तहसील है तो तहसीलदार, सीधे जाके मैंने कहा सब आप लोग। और गया तो कलेक्टर के ऑफिस में गया, सीधा सीधा पता चला तो नगर पालिका अध्यक्ष, पॉलिटिशियन, विधायक के घरों के नंबर ढूंढ रहा हूँ, वहाँ फोन लगा रहा हूँ, मैंने कहा मैं दूंगा, इन लोगों को दूंगा मैं। और टारगेट क्या हो, सब ऐसे टाइम पे चेतना रहे, इनको कमाना भी, मैंने कहा इनको सब ज़्यादा बड़े सेट देंगे अपन। क्या सेट बोले, मैंने कहा पूरा प्रभुपाद जी के बुक्स का सारा सेट ले जाओ 15,000 बस। तो ऐसा मतलब मेरा था। तो मैं देखा और इन लोगों के साथ मैंने समय भी दिया। नगर पालिका अध्यक्ष था एक जगह का, उसको बस लाइक बीजेपी का था, उसने टाइम दिया, वो बैठा, बात किया, तहसीलदार ने बात किया, एक जगह वो IAS ऑफिसर था, बस लाइक SDM, तो ये वाज टॉकिंग। इन लोगों की किताब ले भी लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इनके अंदर कुछ सुकृति भगवान के पास हो तो ये लोग प्रभुपाद जी के पास स्वीकार कर लेते हैं। और आई वॉज फीलिंग माई गॉड, ये सर वो पोस्ट है जिसके लिए हमारे हजारों बच्चे जो है लगे, है ना, लाखों लोग लगे हैं इस पोस्ट के लिए, एंड दे आर सो मच डिप्रेस्ड, सो मच फ्रस्ट्रेटेड, सो मच इरिटेटेड विद देयर पोस्ट एंड पोजिशंस। एवरी टाइम कैमरा उनकी तरफ है ना। उनकी पर्सनल लाइफ में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए उनको बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक सर्वेंट है, ट्रांसपेरेंसी है ना। अभी सरकारों के जो नियम आ रहे हैं, चाहे टैक्सेशन लॉ लो, चाहे ये पब्लिक के लिए लॉ लो, एवरी टाइम लॉज आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट। तो इन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, रिस्क भी बहुत है, ठीक है। एट द सेम टाइम समाज में पाप कर्म करने वालों की कमी है नहीं, तो वो लोग इनको ऊपर नीचे दे दुआ के प्रयास करते हैं कि इनके माध्यम से कुछ गलत करवा लें। तो वन फेलो वाज शेयरिंग टू मी कि बोला मैं कुछ गलत नहीं करता, पर मैं फिर भी बहुत रिश्वत आ जाती है। कारण क्या है, बोला लोग मुझसे गलत करवाना चाहते हैं, इसलिए जिस विभाग में मैं हूँ उसमें अगर आपका सीधा साधा सा काम हो
तो जो सरकारी फीस है वो फीस दे रहा है आपको, मैं कागज साइन करूँगा, नथिंग। मेरी सैलरी अच्छी है, जो कुछ मुझसे नहीं, बट लोगों को चूंकि मुझसे गलत करवाना है, गलत करने का मैं दबा के पैसा लेता हूँ और बोले कि मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग गलत करवा रहे हैं वो अगर उनकी मैं बात नहीं सुनूंगा मेरा ट्रांसफर करवाएंगे, मेरे को परेशान करेंगे। इज ए बिग ऑफिसर विद दिस काइंड ऑफ पोस्ट एंड विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड, वो ये बात करे तो उनका भी अपने जीवन में अपना डर है, उनके भी अपने एस्पिरेशन है ना, घर परिवार उनका भी, उनको भी चाहते हैं ना बच्चों के साथ खेले, बच्चे हमारे साथ रहे, हम इधर उधर ट्रांसफर होते रहेंगे तो हमारे बच्चों का परिवार का क्या होगा, मम्मी पापा के साथ रहना है, बहन की शादी है उसमें जाना है, मैं नहीं जा पाता, ये नहीं कर पाता, एन नंबर ऑफ दे आर सो मच डिप्रेस्ड विद देयर लाइफ, बट हियर इज द सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल वर्ड इज सॉल्यूशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सॉल्यूशन, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास, अभी गीता जयंती का महोत्सव है, आप ज़्यादातर आपको 3-4 स्टूडेंट्स की कुछ एग्जाम्स है, ठीक है, बट वो भी प्रयास कर सकते हैं जितना भी उनसे संभव हो। बाकी जिन स्टूडेंट्स के पास समय है फुल फ्लेज्ड जाए, एन नंबर ऑफ टेक्निक्स आर देयर, है ना। जैसे अगर कुछ टेक्निक्स की बात करें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो सबसे पहले बड़ी किताब बताओ, जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें सबसे बड़ी किताब सबसे पहले बताओ, वो बताओ, वो नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो दूसरा, फिर और ऐसा, सबसे छोटी जो कम, सबसे कम पैसे की वो सबसे कम है ना। अब ये भी दो पार्ट है, आप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हो या किसी गृहस्थ के साथ डील कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं तो फिर अपने को थोड़ा सा वो टीचिंग का भाव भी आता है ना, कि ना 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 ये क्या है, कौन से कॉलेज के हो, अच्छा वैष्णव के हो, अच्छा मेडिकल्स के हो, ठीक है नंबर भी लो, फिर उसको आप 10-20 रुपये किताब गिफ्ट भी दे सकते हो, तो वो आपके ऊपर होता है। बट जब ये भी हम डिस्ट्रीब्यूशन का भाव है, हमको ये के प्रकार हमको किताबें देनी, तो महोत्सव प्रभु हैं वो बड़े नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी 2 बार से उन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़े, 25-26 लाख रुपए का एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने। महोत्सव प्रभु है ना, यूट्यूब पे अपने रिकॉर्ड भी हुआ था, उज्जैन में उन्होंने क्लास दी थी, तो वो बताते हैं कि वो मतलब मैं वही सो फायर्ड अप बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतना फायर्ड अप है, मतलब मैं ना मतलब मेरे माइंड में रहता है जो भी जिंदा है मुझे उसको किताब बतानी है, समझ रहे हैं, जिस जीव में भी प्राण है ना, आई हैव टू टेल, किताब लोगे क्या, देना नहीं लेना उसकी काम, दिस इज द स्पिरिट, समझ रहे, बिल्कुल पॉइंट पे, जहाँ पे भी वो अमेरिका के हैं, इंडिया के नहीं, अमेरिका में वो उनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो बिल्कुल मतलब एक दिन में उन्होंने 40 भागवतम सेट, उसका फिगर ही देख रहा था मैं, भागवतम सेट 40, मतलब कोई छोटे छोटे मंदिरों का वो भाद्रपूर्ण होगा, 100 मंदिरों को 100 का भागवतम सेट का टारगेट ही रहता है, और वो 40 उन्होंने एक ही दिन में कर दी, सिंगल डे। तो वो स्पिरिट कहाँ से है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि माय गॉड आई हैव टू शेयर दिस स्पिरिचुअल वर्ड, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड, नो वन इज गोइंग टू टेल दिस ऑल दिस ना। लोग अभी स्वर्ग नरक में उलझे हैं, लोगों को उसके बारे में पता नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पता नहीं। तो जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, देयर इज द मोस्ट बोनाफाइड, पूरी दुनिया देख रही है। अभी तो ये जो कुछ व्यक्तिगत जो मेरी बातचीत के जो उदाहरण थे वो थे, बाकी दुनिया के बड़े बड़े लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने किया है वो अनपैरेलल है। अभी परसों की बात है, एक सीए कम्युनिटी के लिए चित्ता कृष्ण इज डूइंग बिग प्रोग्राम, तो हमने चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि IRS ऑफिसर होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से आते हैं, शी इज़ अ वेरी सीनियर माता जी है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट उनको बुलाएंगे, वो रहें, और मतलब इस प्रकार का बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं गया, मैं था वहाँ पर, प्रभु जी संकीर्तन बस में गए हुए थे, मुझे कहा कि आप जाओ थोड़ा उनको इन्विटेशन दे के आओ, तो मैं और जो लोकल जो कुछ हमारे कनेक्टेड सीए हैं 7 लोग गए हम, गीता दी, उनको प्रसाद दिया। माता जी कहती है कि मैं पढ़ती हूँ गीता और मैं रोज हरे कृष्णा महामंत्र की माला जप करती हूँ। आपको क्या करना है, दिस काइंड ऑफ पीपल आर हैप्पी, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा। ये इंदौर में है, इंदौर में CCIT चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट, हमको बस जाना है, हमको बताना है। आपको पता नहीं चलेगा, आपने अभी आज धक्का लगाया, कल उसका क्या परिणाम होगा, यू डोंट नो, कब कहाँ जाके भक्त बनेगा आपको नहीं पता। एक था लड़का, अभी उससे बात हुई,
वो बेस में रहता था। बेस में क्या कुछ लड़के आ जाते हैं एडजस्टमेंट वाले, उसको क्या था कि यार ये प्रसाद बढ़िया बनता है बोले करना क्या रहेगा मिनिमम, तो वो समझ गया कि सुबह उठना है 5:30 की मंगल आरती में आपको खड़े रहना है। वो कभी भी नहा धो के मंगल आरती अटेंड नहीं किया, 4 माला से ऊपर कभी जप नहीं किया, 1.5 साल रहा वो, उसका प्रयास कर रहा था। और एट द सेम टाइम क्या वो कुछ बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करता है। तो अपना सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ आ तो सकते हैं आप आराम से और जाना उसका हो नहीं पाता, बकलो कृपालु होते हैं तो निकालना और करना और एकदम से हो नहीं पाता। तो वो आया रह रहा था, क्योंकि अब सब भक्तों के साथ मंगल आरती में तो आते ही कर तो शर्माना करते ही है ना, कुछ सेवा भी बोलते तो कर लेता है। उसके क्या संतरे का बगीचे थे उसके, तो कभी भी जैसा गर्मी में गए घर गया तो एक बोरा भर के लेके आ गया संतरे भक्तों के लिए, बोले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे बढ़िया। तो वो थोड़ा भक्त लोगों को लगता था यार चलो ठीक है कुछ तो कर ही रहा है। तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि उसके ऊपर किसी ने कुछ डिसिप्लिन एक्शन लिया हो, चल रही थी। अभी शादी हो गई उसकी, अभी फ़ोन करके बोल रहा था, फोन आया, मैंने कहा ऐसे बातचीत, मैंने कहा कहाँ हो कैसा क्या चल रहा है, सीए कर रहा था बट हो नहीं पाया समावर दर, तो परिवार के पास पैसों की कमी थी नहीं, तो उन्होंने कोई बिजनेस खोल लिया कर रहा है। तो मैंने बोला और बाकी कैसा क्या, बस प्रभु जी शादी हो गई। मैंने कहा यार आपने बताया नहीं हमको। बोला प्रभु मैं एक्चुअली एडमिट करने के लिए फ़ोन लगाया था मैंने कहा मतलब, अब उसी ने बताई थी सारी बातें। मतलब मैं जब बेस में शिफ्ट हुआ ना तो मेरे माइंड में था कि देखो आप लोग आते हो है ना, मतलब कहीं आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके मेरी भी हेयर स्टाइल और ड्रेस कोड चेंज हो जाए मेरे को डर लगता था। तो वो कभी भी क्लासेस अटेंड नहीं करता था, बहुत रेयरली उसने क्लासेस अटेंड नहीं करता था। जैसे क्योंकि आपका सीए में अलग अलग कोचिंग है ना, जैसे आपके यहाँ तो क्या है कि आपके कॉलेज का शेड्यूल पब्लिक है, नेट पे डला हुआ है, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते मतलब क्या हमारा सीए ऐसा है। तो क्या है कोचिंग क्लास में 6:30 बजे क्लास, क्योंकि आई माई सेल्फ अटेंडेड 6:30 बजे का सेशन, 6:30 बजे क्लास जाता था। मैं खुद भी गया 7 बजे 6:30 बजे 8 बजे से क्लासेस रहती, और रात को भी लेट आओ तो आ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद 2:30 तक आया करता था क्लास में अपने समय में। तो वो क्या करता था, उठा थोड़ी देर मंगल आरती करके 1-2 माला कुछ करके साथ में और चला जाता था। मतलब मेरी क्लास है बैग लेके चले जाओ, हमको भी क्या अच्छा रिविजन किया होगी। अच्छा आप लोगों को भी क्या इतना नहीं, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, नाटा पे है कि पेस पे है, तो मतलब कोई भी होगा, छोटी छोटी बहुत सारी क्लासेस होंगी। तो हमने भी कभी ऐसा नोटिस, क्योंकि रहती है क्लास हमको पता है, तो वो क्लास के टाइम पे नॉर्मली चला जाता था। तो वो बोल रहा था मैं क्या करता था, क्लास के टाइम पे जाता था मेरे दोस्त के रूम पे, वहाँ या तो सो जाया करता था या वहाँ पढ़ लिया करता था, थोड़ा वहाँ पढ़ाई करता था या सो जाता था। और जब भी क्लास होती थी, क्लास 8-9 बजे जब भी होती थी, तो मैं फिर क्लास में चला जाता था। मैंने कहा अच्छा ऐसा, बोला हाँ प्रभु जी ऐसा। तो मैंने कहा फिर बोला प्रभु जी अभी एक चीज़ समझ में आ गई, आप लोग सही बोलते हो। बोला सर में दुखे अभी समझ में आ रहा है। मैंने कहा शादी को ऐसा कितना टाइम हो गया है। बोला कि अभी 1 ही महीना हुआ है। मैंने कहा 1 महीने में मतलब इतना रियलाइजेशन मतलब प्रभु मैं एक और चीज़ समझ नहीं पाया, मतलब मेरा प्रश्न भी है। क्या प्रश्न? मतलब प्रभु जी 99.99% इंटरनेट पे इस संसार में किताबों में एक ही सुख के बारे में बात की जाती है, पर अभी शादी हो गई मेरी, बट मेरे को लगा मुझे समझ में नहीं आता है इतना क्यों बोलते हैं, नॉट कनेक्टिंग विद इट। क्यों दुनिया भर में इतने सारे प्रोपेगेंडे हैं, क्यों ये सब कुछ है? तो ऐसा लग रहा था, सब सुनने में अच्छा लगता था। तुरंत प्रहलाद महाराज की शिक्षा है संसार के सारे सुख क्या है, श्रुति सुखा, सुनने में बड़े रुचिकर। जब आप उसको रियली एंजॉय करते हो है ना, और एटलीस्ट यू आर सो कॉल्ड यू आर ट्राइंग टू एंजॉय, तो समय के साथ आपके भरम फूल जाते हैं। तो नाउ ही इज इन दैट पोजीशन, ही हिमसेल्फ एडमिटेड कि मैं जो है ऐसा किया मैंने, मैं कभी भी क्लासेस वगैरह सुना नहीं। महाराज कभी आए ना तो मतलब वो क्या थोड़ा सा वो भाव रहता है ना कि यार मतलब अपमान भी नहीं होना चाहिए, और वो
ऐसा बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की टेंडेंसी रहती है ना, महाराज आएंगे तो बढ़िया एकदम से फिर उनके सामने आ जाएंगे, है ना, और प्रणाम वणाम कर लेंगे, जैसे जाते आते हैं 100-500 रुपये सा दक्षिणा दे देंगे, ताकि मतलब सब भक्तों को लगे कि यार ये ऐसा सेवा भावी है, सब कुछ है। तो वो खुद ही बोला मेरे को ऐसा लगता था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छी सेवा है कुछ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है। मैंने कहा ठीक है, जो कर रहे हैं उनकी सेवा ही कर दो। इज रेडी टू डू सो। बोला हाँ प्रभु, मेरी जो भी यथाशक्ति जो मुझसे से हो पाएगा मैं आऊँगा, मिलूंगा। अभी वो परिवार के साथ आने वाला है, उज्जैन आएगा, मिलेगा, अभी वाइफ वगैरह कभी आई नहीं। तो अभी इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड, देयर इज नो प्लेजर, है ना, संसार में सुख और दर्पण में मुख, दिखता है पर होता नहीं है। तो ये बातें कौन बताएगा, हम बताएंगे। तो प्रभुपाद जी गीता लेके जाओ, किताबें लेके जाओ भैया, नो मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग, आज आपके 10 गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई 50, डजंट मैटर, आप जाके बस आओगे ना और लोगों को सिर्फ ये बताओगे ना ये गीता है, अगर कोई देखता भी है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिंपली बाय सीइंग माय बुक्स वंस मटेरियल लाइफ इज फिनिश्ड। व्हाट टू स्पीक ऑफ टू टच एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ, अगर वो ना भी ले तो एटलीस्ट वो उसको छुएगा, देखेगा, 2-4 पेज खेलेगा, अच्छा ये लिखा ठीक, हमारा कोई लॉस ही नहीं। आप 6 घंटे घूमे, एक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, हमारा मॉरल हमारा डाउन हो जाएगा। अरे बट आपको पता नहीं है कि आप तिलक लगा के गए थे, धोती पहन रखी थी, आपके हाथ में किताबें थी, लोगों ने बस अरे ये हरे कृष्ण वाला जा रहा है, उसने मन में भी सोच लिया ना, यू हैव प्रीच्ड, यू आर सक्सेसफुल इन योर मिशन, यू आर सक्सेसफुल, एटलीस्ट simply by looking at you he was remembering Krishna, that's our preaching। प्रभुपाद जी का पास टाइम एक बार बड़ा इस्कॉन को लेकर बड़ी बुरी सी खबर थी, इस्कॉन वाले ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो प्रभुपाद जी को किसी ने न्यूज़ बताई, प्रभुपाद जी ने न्यूज़ में गिनने लगे 1 2, in whole news article they wrote 11 times Krishna, that's important। ये है प्रभुपाद जी की पॉजिटिविटी और ये है उनकी होप अगेंस्ट होप फिलोसफी, जो हमको पूरी दुनिया में शुरू। मैंने कहा ना, अगर हाँ हुआ ना, उज्जैन में कार्तिक मेला लगता है, मैं और कुछ वक्त गए, मेरा मेला है तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, उसके एक दिन पहले क्या मेरा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 5-7 हज़ार रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करके आया था, मैं पॉइंट पे गया था, तो लाइक थोड़ा सा पपडप भी हो ही जाते हैं, स्वाभाविक बंदे थी। मैं गया वहाँ पे गया, तो वहाँ मैंने देखा कि मेले में ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, ज़्यादातर मुस्लिम लोग, दुकान में हिंदू मुस्लिम दोनों थे, बट मुस्लिम ज़्यादातर थे। मतलब मुसलमान तो मुसलमान लोग तो लेगा नहीं, बट हिंदू भी नहीं ले रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब वो फाल सिखों के चक्कर में बस लोग वेट कर रहे हैं मेरा गाड़ी पे, मैंने कहा रुको यार मैं कुछ और ट्राई करूँ, लेट मी ट्राई। मैंने गीता साहब दुकान पे गया मैं, मैंने कहा गीता साहब, मैंने कहा पुस्तक ले लो, उसने कहा मैं ले लूँगा बट आपको भी मेरे से कुछ लेना पड़ेगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। वो एक ही, अब वो मेरे को मतलब फ़ोन लगा रहे हैं, बोले प्रभु आ जाओ यार, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, उनका भी हुआ किसी का, और मेरा फालसी को अपना, मैं कुछ तो करे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, मैंने उसको गीता साहब दी और उससे एक नेल कटर लिया। अब मुझे बाद में इतना लगा, मैंने कहा माय गॉड, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ। आई वाज फीलिंग कि यार क्या करेंगे अपन, तो फिर भगवान कृपा करते हैं, कृपा के सागर है, वो मौका देते हैं आपको, समय के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो मैंने यही कहा कि एटलीस्ट कम से कम इतने सारे, बाद में भक्त ने समझाया कि देखो आप वहाँ थे, इतने सारे मुस्लिम्स थे और आप बिल्कुल वैष्णव अटायर में आप हो, गीता आपके हाथ में है, एटलीस्ट दे थिंक कि यार आप इस्कॉन से हो, ये हरे कृष्णा वाले हैं, बोले इनके हाथ में गीता है। ये जो कंटेम्पलेशन भी लोगों के माइंड में आपको देख के आया ना, दैट वाज प्रीचिंग, यू डिड योर जॉब। आपको पता नहीं, आप धक्का लगा के आए हो कई लोगों को, वो कब कल कहाँ, क्योंकि किसी ने भी गीता देख ली, राधा कृष्ण की तस्वीर को देख लिया, जिसने यहाँ पे कृष्णार्जुन को देख लिया, कृष्ण लीला, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कृष्णा बुक में राधा कृष्ण की तस्वीर को देख के कितना आकर्षित हुए कि वो वृंदावन आ गए थे। ही वॉज प्रैक्टिकली बेगिंग कि मेरे को ये किताब लेना है, मतलब मेरे को पैसा देता था कि मैं किताब ले लो। तो भक्त ने कहा रहे यार ये जो आदमी बेगिंग ही कर रहा है, मतलब तो उसको दे दी किताब, ले जाओ है। तो एक किताब का एक फोटो
वो मतलब एक हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज जी को भक्त बना दिया, मतलब व्हाट डज इट मीन, हमको पता ही नहीं। हिज ऑनरेस राधा महाराज बताते हैं कि उन्होंने जब पुस्तकें देखी थी तो ही वॉज नॉट हैविंग एनी मनी, तो वो उन्होंने पत्र लिखा अपने मामा के बेटे को या मामा को, ऐसा किसी को, मतलब मेरे को कुछ पैसे दो, हम क्या है पुस्तकें खरीद के लाएंगे। वृंदावन जाके पुस्तकें खरीद के लाए वो, उनसे पैसा लेके, और वो पैसा भी किताबों के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो तमाल कृष्ण महाराज ने, पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। महाराज बोले पढ़ेंगे, तो उनको जो भी उन्होंने डोनेशन उसको दिया, उसको किताबें दे दी, तो राज और राधा कोई महाराज हो गए। तो हमको पता ही नहीं चलता कब क्या हुआ। मतलब तमाल कृष्ण महाराज ने भी क्या सोचा होगा कि यार ये मतलब जिनको मैं, अब ऐसे कई बार हम भी देते हैं ना कि चलो ठीक है यार ये छोटी किताब है। कल मैं यहाँ मेले में था, यहाँ सॉरी वो जो जहाँ CM आया था, तो एक कोई आदमी था, तो बोला यार मेरे पास इतना पैसा नहीं, और वो मैंने देखा कि वो उसका गुटखे का पाउच था, बड़ा सा गुटखे का पाउच, और उसके अंदर से 10-10 के फटे फटे से नोट निकाले उसने, उसको लेना चाह रहा था गीता जयंती तो मैंने कहा कि यार छोटी कोई पुस्तक तो ना, ठीक है 10 रुपये में दे दो। तो 10 रुपये दी, मतलब वो 10 रुपये भी उसके ऐसे मल्टीपल फोल्ड्स वाले 10 रुपये थे। वो देख के समझ में आ रहा था कि आप कौन, किससे आप ले रहे हो। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे ही दे दो, मैं नहीं चले, अगर ये कुछ देगा नहीं तो फिर सेवा कैसे होगी। ये गेव समथिंग, मैंने कहा ठीक है ले जाओ, ये ले जाओ। तो अभी क्या हुआ ना, अब आपने धक्का लगा दिया, इसका रिजल्ट हो सकता है आपके सामने आए, आपके सामने न भी आए, बट रिजल्ट आना जरूर है। आज नहीं आए कल आए, बट रिजल्ट विल कम। तो हमारे प्रोसेस से धक्का लगाने की पूरे उत्साह के साथ आप जाओ, जितना हो बेस्ट है, वैष्णव अटायर रहेगा दैट्स गुड, ना भी हो शर्ट पैंट में जाओ कोई समस्या नहीं। आत्मगीता लेके आप प्रयास करो, जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा लोगों को आप दिखा सको दिखाओ। दैट्स द ग्रेट सक्सेस ऑफ अवर मूवमेंट। जो लेगा, क्योंकि क्या है, कोई आदमी खरीद रहा है, इट्स नॉट आर ग्लोरी एक्चुअली, वो भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है ना, हृदय सन्निविष्टि, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम तो जानते हैं। तो भगवान जब प्रेरणा देंगे तो आदमी आपसे 1 लाख रुपए किताब ले लेगा। भक्त अभी सुंदरता प्रभु मैं संकीर्तन बस में मिला, संकीर्तन उन्होंने उसको गीता बताई, गीता है अच्छा, तो बड़ा सिंपल लुकिंग आदमी था। उसने कहा अच्छा आप इस्कॉन वाले हो? बोले हाँ। मैं गीता देखी, बोला मेरे को चाहिए तो है गीता, पर यार आप कितने लोग रुपये लेते हो अभी? 200 रुपये। अच्छा तो 20 कॉपी दे दो क्या मेरे को, है आपके पास इतनी? मैंने कहा क्या मतलब, सुन के अच्छा लगा उनको। बोला, उन्होंने पूछा आपके पास गाड़ी है कुछ है क्या? हाँ ये बाइक है। बोले चलो ना मैं दिल्ला खिला दो। बस थोड़ी पीछे खड़ी थी, वो हाथ में तो 4-5 किताब रहती है ना, तुरंत ले गया उसको, तुरंत 20 किताबें थी, बोले ले जाओ। फिर वो 20 के वहाँ सीतानाथपुर थे, तो 20 किताब रेडी हो गई, कार्टून में रख रहे थे वो। सीतानाथपुर, अरे ये 32 का पूरा कार्टून ही है, ये ले जाओ ना। ठीक है चलो वो दे दो। समझ रहे? अब क्या भगवान को जब डिस्ट्रीब्यूशन करवाना होगा ना, वो ऐसे करवाएंगे जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी। खजराना में था, एक बड़ी सिंपल लुकिंग सी माता जी थी, एजेड सी। अब मैंने कहा मैं ये क्या लेंगे, मतलब अब 200 रुपये। अपन कई बार अपन कपड़ा देख के, शक्ल देख के, टायर देख के हम जज करते हैं ना, तो वही जज करने की प्रवृत्ति हम सब माता जी होगी। तो मैंने गीता लेंगी कितने की, जो भी उसको खरीदता मैंने बताया ये, तो मेरे को पंडित जी ने बोला है गीता पढ़ने के लिए, तो आप हिसाब से लगा लो। तो मैंने कहा माता जी जो है हिसाब से, हम तो सेवा कर रहे हैं, ये प्रचार। ठीक है चलो अब आप कह रहे हो तो सीओ में लक्ष्मी। मैंने कहा माय गॉड, आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग, जीरो था मैं। मैंने कहा ये एक मतलब आप लोगों पर ठीक है यहाँ खड़े हो तो मैंने बस पूछ ली। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मी। उसने देखा कि मेरे हाथ में गीता है, बट वो मेरे पास नहीं आई। बस मैंने कहा आप गीता लेंगे? तो आपको पता ही नहीं है हम कब किसका जीवन बचा लेंगे। गीता चली जाएगी, गीता हम दे देंगे तो आपको कब जीवन पर। जो मंदिर का एक बड़ा मतलब मेरे को तो सुन के इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं कई बार उसको बता चुका हूँ, कई भक्तों को व्यक्तिगत रूप से बताया होगा, क्लास में बताया होगा, जहाँ जाता हूँ मैं बताता हूँ। इवन मैं प्रचार में भी जाता हूँ ना, और कोई पूछता है कि आपकी किताबों में क्या है, तो मैंने कहा हमारी किताबों में जादू है। ये जादू इस प्रकार का जादू, इंडिया के टॉप 5 में से 3 सुपर स्टार, सुपर सेलिब्रिटीज को
ट्रीट करने वाले साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक डॉक्टर, इंडिया के बड़े डॉक्टर, नामी गिरामी डॉक्टर में से एक, उनका इकलौता बेटा 18 साल की उम्र में डेथ हो गई उसकी। माँ ऑलरेडी चली गई थी। अब उसको लगा कि यार करोड़ों की संपत्ति है मेरी, मैं क्या करूँगा इसमें, बड़ा दुख हुआ, क्या करें, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। वो अपनी बढ़िया BMW लेके घर से निकले गाय के लिए सुसाइड करने। रास्ते में जुहू मंदिर की बस पॉइंट है, वहाँ तो मुंबई का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉइंट पे बस रुक गई और वो सब रुके हुए थे, तो बहुत लोग उतर के किताब बांटने लगे। तो उसमें उसके कांच के वो वक्त नाप किया और उसको बताई मृत्यु की पराजय। अब ये भाई साहब सोच रहे हैं फॉर व्हाट ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट डेथ। बोला जब मरना तो है, लेट मी रीड। नॉक खोला, जो भी उन्होंने कोई डोनेशन दिया, बुक ली, गए वो जहाँ उनको प्लान था सुसाइड करने का, उसी पॉइंट पे गए वो। काफ़ी ऐसा समुद्र में डूबने का उनका प्लान था, तो वो ऐसे पॉइंट पे गए, कार लगाई। इतना इंटेलिजेंट ब्रिलियंट आदमी, इतना बड़ा डॉक्टर, 1.5-2 घंटे में ही फिनिश्ड होल बुक। और बुक पढ़ते पढ़ते गूस बम्पिंग, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। बुक खत्म हुई, मैं क्या कर रहा था, क्या करने वाला था, मैं मेरा जीवन बर्बाद कर रहा था। एड्रेस देखा जुहू में, बोला जुहू गए। वहाँ जाके उन्होंने किसी से पूछा, बोले वो एडमिन वाले कौन है, बोला इधर ऑफिस है। बोला कुछ काम है क्या, हाँ कुछ डोनेशन देना, हाँ बोला दे दो। तो बस लोग हमको दे दो, हम नहीं। बोला वो 2 करोड़ का चेक है। को चेक बुक निकाल के चेक में बस, फिर तो बोले भैया आप जिससे मिलवाना उससे मिलवाएंगे, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ये लो। तो व्हाट ऑल अबाउट दिस बुक्स आर मिरेकल। आपको पता ही नहीं, एक भक्त चौपाटी के भक्त को सुनाते हैं, ये बस फीलिंग लाइक के उनको बड़ा दुख होता है इस फास्ट टाइम को सुनाने में। लेकिन वो मुंबई लोकल के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और वो एक लड़के की तरफ देख रहे थे, मतलब बड़ा टेंस दिख रहा था। तो जैसे हम जज करते हैं ना, मतलब यार ये क्या लेगा, तो ये सोच के वो लड़का था टेंशन में दिख रहा था। तो उन्होंने क्या है, उसके आसपास वाले से पूछा किताब लोगे, किताब लोगे, किताब लोगे। उस लड़के से नहीं पूछा, उसको छोड़ के वो आसपास गए। वो लड़के ने उनको देखा बट ही डिड नॉट, चलो छोड़ो यार, टेंशन में दिख रहा है, क्या बात कर। और वो आगे गए, वो ऐसा पलट ही रहे और अचानक देखा वो लड़का जैसे ट्रेन आई उसके सामने कूद गया। He committed suicide in front of that local train. तो मुझे बड़ा दुख होता है, बोले दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली। मैं उसको देखा बट मेरे को लगा ये क्या किताब लेगा, जब तो दुखी दिख रहा था। मतलब जो आदमी सुसाइड करने वाला है, मतलब समझ लो ना वो कितना, उसके चेहरे पे क्या रंगत उड़ गई होगी। और वो बोले कि मैं उस वक्त उसको किताब नहीं बता पाया। मेरे को जीवन में सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं उसको बता नहीं पाया। वरना एक अगर वो लेता, कुछ करता, लेता नहीं लेता, मतलब जिसमें अप्रोच करता है भगवान की कुछ तो कृपा होती है उसके ऊपर। गेटिंग तो आप, हम इस पूरे संसार की होप है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप बहुत अच्छा प्रचार करें, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करें, और इन रिटर्न मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं भी अच्छे से सेवा कर पाऊँ। श्री गोपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे।